Hello students, in today's lecture we will be learning about scope and branches of accounting. The topics for today's lecture is users of accounting, scope of accounting and system of accounting. We will learn about scope and branches of accounting, and we will further learn about basic concept of accounting and uses and advantages of accounting. Now let's start with the basic concept of accounting. First point is users of accounting. We have different types of users of accounting. That is, first is creditors, then shareholders, government, investors, lenders, and last one is the management. So first is the creditors. Creditor is a person, bank or company that lends money to someone. Creditors, a number of suppliers make supplies on credit. Creditors are interested to know whether they would get their dues as assured by the firm. The next point is shareholders. A shareholder of a corporation is an individual or legal entity such as another corporation, a body, a trust or partnership that is registered by the corporation as the legal owner by shares of the share capital of a public or private corporation. There are two types of shareholders. First is the ordinary shareholders and second is the preference shareholders. शेयरहोल्डर्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि शेयर्स के दो टाइप्स होते हैं. शेयर क्या होता है? शेयर्स के दो टाइप है. फर्स्ट इज द इक्विटी शेयर एंड सेकेंड इज द प्रेफरेंस शेयर. ऐसे शेयर होल्डर्स के भी दो टाइप्स है. फर्स्ट इज द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड सेकेंड इज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स आर considered by some to be a subset of stakeholders, which may include anyone who has a direct or indirect interest in the business entity. Okay, for example, employees, suppliers, customers, the community, etc. Shareholders are typically considered stakeholders because they contribute value or are impacted by the corporation. शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन है, उसने क्या किया है? 20% शेयर्स XYZ कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं. तो जिस पर्सन ने 20% शेयर XYZ कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं वो पर्सन कौन है? शेयर होल्डर है. उसको हम बोलेंगे शेयर होल्डर्स. ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स क्या है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैव द right to influence decisions concerning the company by participating at general meeting of the company and in the election of directors and can file class action lawsuits. मीन्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में क्या होता है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो भी है उनको राइट्स होते हैं कि वो डिसीजन ले कंपनी में. मीटिंग जनरल मीटिंग में वो क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डिसीजंस भी ले सकते हैं. देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. दे आर पेड अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड विच इज पेड इन प्रायोरिटी टू द डिविडेंड टू बी पेड टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यूजुअली डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स इन द कंपनी. अभी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को क्या होते हैं? राइट्स होते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जनरल मीटिंग में और वोटिंग राइट्स उनको होते हैं, वो डिसीजंस भी ले सकते हैं. पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं? उनको राइट्स नहीं होते, वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं कंपनी में. वो इंटरफेयर नहीं कर सकते कंपनी में. तो ये डिफरेंस है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. अभी हमने देखा था डिविडेंड. अभी डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड रिफर्स टू अ रिवार्ड
cash or otherwise that a company gives to its shareholders. मीन्स अगर आपने शेयर आपने इन्वेस्ट किए है किसी कंपनी में, तो ऐसे ही किए कि आपको क्या मिलना चाहिए, उससे प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। अगर आपने शेयर इन्वेस्ट किए तो एज अ शेयर होल्डर आपको कंपनी से जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है, जितना भी कैश मिल रहा है, जितना भी रिवार्ड मिल रहा है कंपनी से, वो क्या होता है, डिविडेंड होता है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। Shareholders are considered by some to be a subject of stakeholders, which may include anyone who has a direct or indirect interest in the business entity, for example, employees, suppliers, customers, and the community. Shareholders are typically considered stakeholders because they contribute value or are impacted by the corporation. Shareholders को हम क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स। ओके, तो आपको शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स क्लियर है। द नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड टू नो द अमाउंट ऑफ टैक्स इट कैन कलेक्ट बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम क्या देख रहे हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स कौन कौन है, फर्स्ट देखा क्रेडिटर्स, देन सेकेंड इज द शेयर होल्डर्स एंड थर्ड इज गवर्नमेंट। तो अभी अकाउंटिंग कौन यूज़ करता है और कहाँ पे यूज़ करता है, तो गवर्नमेंट क्यों अकाउंटिंग यूज़ करता है, गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड टू नो द अमाउंट ऑफ टैक्स इट कैन कलेक्ट। गवर्नमेंट जितना भी पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करता है, वो क्या करता है, उसको कलेक्ट कर रहा है, वो उसको पता होना चाहिए कि कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है पब्लिक से। तो कैसा पता चलेगा, उसको कैसे पता चलेगा, बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज द इन्वेस्टर्स। Investors, those who are interested to invest their money, can make their decisions based on the study of the financial statements. Potential shareholders take lot of interest in the financial statements for their decision in investing. अभी शेयर होल्डर्स देखा हमने, इन्वेस्टर्स है, अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई कंपनी में, कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल है, शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में। तो उनको कैसा पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस कंपनी का, बाय अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द लेंडर्स। हु इज द लेंडर्स, दोज हु वांट टू लेंड मनी। लेंडर्स इज दोज हु वांट टू लेंड money. Financial institutions or banks are interested to make their decisions before lending. After lending, they would be able to assure themselves about the safety of the funds after a careful analysis of the statement. अभी लेंडर्स है, वो भी क्या करते हैं, अकाउंटिंग को यूज करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द बेसिक यूजर ऑफ अकाउंट्स। मैनेजमेंट क्या है, बेसिक यूजर है अकाउंट्स का। दे अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड पोजीशन ऑफ द फर्म फ्रॉम द अकाउंट्स। अभी मैनेजमेंट है, उनको फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड पोजीशन कैसी पता चलती है कंपनी की, बाय द अकाउंट्स। ओके, they are interested in every aspect of accounting as their uses are diverse for different purposes. Okay, the uses of accounting clear है, कौन कौन uses है और कहाँ पे use करते हैं accounting. The next point is the scope and branches of accounting. The different branches of accounting are financial accounting, cost accounting, and last one is the management accounting. First is the financial accounting. Financial accounting is the original form of accounting. It is mainly limited to the preparation of financial statements, that is profit and loss account and balance sheet. Here the preparation is made on historical basis, that is after the happening of the event. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, इट इज़ मेनली लिमिटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जाता है। उसमें क्या आता है, फर्स्ट वन इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकेंड इज़ द बैलेंस शीट। फाइनेंशियल अकाउंट में क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। उससे क्या पता चलता है,
कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है. All the persons who deal with the joint stock company want to know information about the financial health of the company. अभी जितने भी स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स थे, उनको कैसा पता चलता है कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? बाय मैनेज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बाय मेंटेन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. Profit and loss account provides information how the business has been conducted and final position about the profit or loss of the firm for a specified period. And balance sheet shows the financial position of the firm on a particular date. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है? हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करने से क्या पता चलता है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फाइनल पोजीशन अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म फॉर स्पेसिफाइड पीरियड. एक स्पेसिफाइड पीरियड में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है कंपनी को, ये कैसे पता चलता है? हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है. और बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन अ पर्टिकुलर डेट. किसी पर्टिकुलर डेट को बैलेंस शीट मेंटेन करने से, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है फर्म की. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लियर है. देन नेक्स्ट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग. Cost accounting has developed on account of the limitations of the financial accounting. Cost accounting is basically concerned with the estimation of cost in advance and their subsequent detailed analysis for the purpose of control. Management is interested to know the cost of the different products they make for the purpose of determining the price. And secondly, management has to take suitable decisions when they receive a special order at a lower price than the current market price, for acceptance or rejection. When resources are scarce, everyone is interested to use the resources and manufacture that product in priority, which gives them more profits than other प्रोडक्ट्स. अभी कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग एक फर्म में, एक बिजनेस में? क्योंकि फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट कटिंग कहाँ पे करना है, कितना कॉस्ट कहाँ पे यूज़ करना है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना कॉस्ट लगना चाहिए. ये कैसे पता चलता है हमें? बाय यूजिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. Cost accounting helps the management in achieving the profits they plan to achieve. Okay, then next is the management accounting. Management accounting is accounting for the management. Management wants information to discharge its function in forecasting, budgeting, control over cost and strategy formation. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजर क्या करता है? मैनेजमेंट वांट्स टू इंफॉर्मेशन टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन इन फोरकास्टिंग. अभी डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट लेता है. क्या करता है उसमें? फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड कंट्रोलिंग ओवर कॉस्ट. अगर ओवर कॉस्ट हो रहा है, कॉस्टिंग हो रही है, कंपनी में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, तो क्या करना है? उसके ऊपर कंट्रोल करना है. कंट्रोल ओवर कॉस्ट एंड स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन. कुछ स्ट्रैटेजीज वहाँ पे फॉर्म करनी है, स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन करना है. तो उससे कैसे पता चलता है ये कैसे करना है हमें? बाय यूजिंग द मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. Management accounting helps them in the creation of the policy. Further, management accounting assists them with the supply of relevant information at appropriate time for decision making and exercise effective control on the operations of the undertaking. Management accounting क्यों ज़रूरी है? For decision making. तो branches of accounting आपको clear है? 3 branches है. First is the financial accounting, then second is the cost accounting, and third is the management accounting. The next point is the systems of accounting. There are 2 systems of accounting for recording transactions.
First is the single entry system and second is the double entry system. First is single entry system. Single entry system sounds economical, but it is really costly. In fact, it is rather a lack of system. This system is adopted where the business is run on cash basis only. It is not a scientific system, and final accounts cannot be easily prepared on the basis of this system. Small businesses and organizations that do not require ascertainment of profit follow this system. अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल बिजनेस है, उसमें ये सिस्टम यूज़ नहीं किया जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम कैसी है, रियली इट इज़ रियली कॉस्टली. देन सेकेंड इज द डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम, द ओनली रियल सिस्टम इज द डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम हर जगह पे यूज़ किया जाता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में यूज़ किया जाता है. डबल एंट्री सिस्टम recognizes the fundamental factor that every transaction is double-sided affair. According to this system, for every debit there is a corresponding credit. This system is universally followed in accounting. On the basis of this system, accuracy of accounting can be maintained and arithmetical correctness can easily to be established. अभी डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है उसका, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग कैन बी मेंटेन. एक्यूरेसी मेंटेन किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करके, और अरिथमेटिकल करेक्टनेस कैन ईजीली बी एस्टेब्लिश्ड. अगर आप डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हो तो वहाँ पे अरिथमेटिकल करेक्शंस भी होते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आर इजीली प्रिपेयर्ड once the concern follows the double entry system of accounting. अगर आप डबल एंट्री सिस्टम यूज़ कर रहे हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स ईजिली प्रिपेयर आप कर सकते हो बाय यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट. देन अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज द कैश सिस्टम एंड मर्चेंटाइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. Cash system, it is used where only cash transactions take place and the object of the concern is not to make profit. In this system of accounting, entries are made only when cash is received. No entry is made when receipt or payment is due. कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इन केस ऑफ क्लब, लाइब्रेरी, educational institute, religious trust, etc. And the objective of the concern is not to make profits. Only cash book is kept under this system. यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है. कंसर्न इज नॉट टू मेक प्रॉफिट. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का या प्रॉफिट बनाने का कोई कंसर्न नहीं रहता है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है इस सिस्टम में. यहाँ पे वहाँ पे वो यूज़ किया जाता है कैश सिस्टम. कहाँ पे यूज़ किया जाता है? क्लब है, लाइब्रेरी है, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड रिलीजियस ट्रस्ट है, वहाँ पे कैश सिस्टम यूज़ किया जाता है. एंड सम प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉलो दिस